Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we continue chapter number 11, Transport in Plants. Today's topic is plant-water relationship. Water is essential for all the physiological activity and also provide medium for the substances to dissolve in it. Protoplasm of the cell contain water in which different molecules are dissolved and suspended. सेल के प्रोटोप्लाज्म में भी लॉट्स ऑफ वाटर होता है जो प्रोवाइड करता है मीडियम मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व होने के लिए. टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक लॉट ऑफ वाटर and release most of it in the form of water vapor by the process of transpiration. Terrestrial plants के पास lots of water होता है और they release the water by the process of transpiration. Water is the limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environments. Water क्या है? Water is the limiting factor for the plant growth. Next is water potential. So water potential is important to understand the water movement. Water potential is determined by two. First, solute potential and pressure potential. Solute potential denoted by this and pressure potential denoted by this. Water molecule possess kinetic energy. It means if there is a more number of water molecules, then there is a more kinetic energy. The greater the concentration of water in the system, greater is the kinetic or water potential. So pure water has the greatest water potential. Water molecules possess kinetic energy. More water molecules, more kinetic energy. So pure water has more water molecule and has the greatest water potential or kinetic energy. Water potential is denoted by Greek symbol psi and is expressed in pressure unit Pascal. Water pressure of a pure water at a standard temperature and pressure is taken as 0. A solution has less water potential due to less water concentration. If water concentration is less or water molecule is less, then they have less kinetic energy or water potential. वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और प्योर वाटर के पास वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं. इफ वी डिसॉल्व सॉल्यूट इन अ वाटर देन इट्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस. अगर प्योर वाटर में सॉल्यूट को मिक्स कर दिया जाएगा तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल. और ये जो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने से, इसे कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल. यानी सॉल्यूट का पोटेंशियल जो वाटर के पोटेंशियल को कम कर रहा है. सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है. इट मीन्स हम जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होगा वाटर के अंदर उतना कम ही सॉल्यूट पोटेंशियल होगा. इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड, अगर प्योर वाटर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस वाटर का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है. प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? यूजुअली पॉजिटिव. प्रेशर पोटेंशियल इज डोनेटेड बाय phi P. Water potential of a cell is affected by the both solute and pressure potential. Water potential we determine by solute potential and pressure potential. So water potential is affected by the both solute potential and pressure potential. The relationship is as follows. Container A, container B, and this is the semi-permeable membrane. In container A, there is less solute molecule and large water molecule. In container B, more solute molecule and less water molecules. Water potential is equal to solute potential and pressure potential. Osmosis
Osmosis is the diffusion of water across a semi-permeable membrane. Osmosis क्या है? Semi-permeable membrane के through water का diffusion osmosis कहलाता है. And the net direction and the rate of osmosis depend upon the pressure gradient and concentration gradient. Osmosis किस पे depend करता है? उसका डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट पर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर. वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. वाटर मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. कंटेनर ए में वाटर का हाई कंसेंट्रेशन है, कंटेनर बी में वाटर का कम कंसेंट्रेशन है. सो वाटर मूव्स फ्रॉम ए टू बी until equilibrium is reached. Solute A has more water and less solutes, so high water potential in comparison to solution in B container. Osmotic potential is the pressure required to prevent the water from diffusing. अब osmotic potential क्या है? ये वो potential है जो water को prevent करेगा diffuse होने से. More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent the water फ्रॉम डिफ्यूजिंग इट. ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो वाटर के डिफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है. वाटर मूव करता है हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन. बी में क्या था? सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, जितना ज्यादा था उतना कम वहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन था. इट मीन्स उतना ज्यादा बी की तरफ हमारा वाटर डिफ्यूज हो रहा था. जितना ज्यादा सॉल्यूट, अब जितना ज्यादा वहां पे डिफ्यूज होगा उतना ज्यादा ही हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वाटर डिफ्यूजन के मूवमेंट को रोकने के लिए. सो मोर द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इट. ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट साइन इज ऑपोजिट. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है बट साइन ऑपोजिट होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर while osmotic pressure is negative. osmotic pressure क्या है? पॉजिटिव. osmotic potential क्या है? नेगेटिव. अब सॉल्यूशन आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ साइटोप्लाज्म. एक सॉल्यूशन लिया, उसमें सेल को रखा, अगर वो एक्सटर्नल सॉल्यूशन उस सेल के साइटोप्लाज्म के प्रेशर को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म, द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक. अगर एक सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा और वो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन डिफ्यूज करने लगेगा सेल के अंदर और सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप. If external solution is more dilute, then this is hypotonic solution. Next है hypertonic solution. If the external solution is more concentrated, अब क्या है? solution बहुत ज्यादा concentrated है तो हमारी सेल क्या करेगी? shrink कर जाएगी. सेल के प्रोटोप्लाज्म में जितना भी वाटर था वो क्या करेगा? डिफ्यूज कर जाएगा बाहर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में और हमारी सेल क्या कर जाएगी? shrink हो जाएगी. This solution is called hypertonic solution. It means isotonic पर सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटोनिक पे सेल स्वेल अप हो जाएगी और हाइपरटोनिक पे सेल श्रिंक हो जाएगी. नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो सेल श्रिंक हो जाती है कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम द सेल वॉल. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. द प्रेशर यूजुअली रिवर्सिबल व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और ये प्रेशर जो है ये रिवर्सिबल होता है. इट मीन्स हमने सेल को हाइपरटोनिक में रखा तो सेल क्या हो गई? श्रिंक हो गई. उसी सेल को जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी. नेक्स्ट आता है टर्जर प्रेशर. प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट द वॉल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल कॉल्ड टर्जर प्रेशर. सेल के अंदर वाटर मूवमेंट के कारण
जो प्रेशर डेवलप होता है वॉल के अगेंस्ट उसे टर्जर प्रेशर कहते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल. Next is imbibition. Imbibition, it is the special type of diffusion when water is absorbed by solid colloids causing them to increase in volume. Imbibition में क्या हो रहा है? Solid colloids water को क्या कर रहे हैं? Absorb कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, absorption of water by seeds and dry woods. Imbibition is also a kind of diffusion. ये एक तरह का डिफ्यूजन है, एक टाइप का, बिकॉज मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. डिफ्यूजन में क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है. और इम्बिबिशन में क्या होता है? इम्बिबिशन में भी जो डिफ्यूजन हो रहा है वो from high concentration to low concentration हो रहा है. So it is also a type of diffusion. Water potential gradient between the absorbent and liquid imbibed is essential for imbibition. Water potential gradient किस लिए important है? Water potential gradient important है imbibition के लिए. और water potential gradient किस किस के बीच में डेवलप होता है? एब्जॉर्बेंट और लिक्विड इम्बेडेड. ठीक है, एब्जॉर्बेंट यानी सीड्स, लिक्विड इम्बाइब्ड मीन्स वो जो लिक्विड सीड के अंदर अब जा चुका है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. इट इज टेक्स प्लेस बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम. लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का प्लांट्स के अंदर वो बल्क फ्लो और मास फ्लो सिस्टम के थ्रू होता है. इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. अब क्या हो रहा है? मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हो रहा है प्रेशर डिफरेंस के कारण उन दो पॉइंट के बीच में. सपोज एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी. इन दोनों पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो मूवमेंट है बल्क मूवमेंट वो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हो पा रहा है. थर्ड पॉइंट है द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. और ये जो बल्क मूवमेंट हो रहा है वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसलोकेशन की क्या डेफिनेशन हो गई? बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस with the help of vascular tissue of a plant is called translocation. Xylem is essential with translocation of water and mineral salt, some organic nitrogen and hormone from root to aerial part of the plants. Xylem किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प कर रही है? ट्रांसलोकेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स को, मिनरल सॉल्ट्स को, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, हार्मोन को रूट से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसलोकेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम हेल्प करती है. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. जाइलम क्या कर रहा है? रूट से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. दिस टॉपिक is completed. Next topic will be covered in the next video. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching.